class 10th mathematics chapter trigonometry exercise 8.2 class 10th mathematics chapter trigonometry exercise 8.2 question. Evaluate the following. Question number 1. Evaluate the following. It is very easy chapter or very easy exercise. Question number 1. Part 1. Sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree. How will you solve this one? See, we know the value of sin 60. Sin 60 is equal to root 3 by 2. Sin 60 is equal to root 3 by 2 into cos 30 is equal to root 3 by 2 plus sin 30 1 by 2 cos 60 it is also 1 by 2. Simple. Numerator multiplied by numerator, root 3 multiplied by root 3 3, like as root a into root a is equal to a, root x into root x is equal to x. By the x raised to the power 1, you can write root x is equal to x raised to the power into x raised to the power 1 is equal to x raised to the power 1 by 2 plus 1 by 2 is equal to x raised to the power 1. Simple. Half plus half 1. So root x into root x is equal to x. Root ab into root ab is equal to ab. Simple. So here root 3 into root 3 3, 2 into 2 4 plus 1 into 1 1, 2 into 2 4, take LCM 4, 3 plus 1 is equal to 4 upon 4, cancel out 1. The value of this one is 1. Part second. Two tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. See here, we know that sin square theta is equal to sin theta का whole square. Both are same things. Tan square theta is equal to tan theta whole square. So here 2 tan square 45. You can write in this form 2 tan 45 degree whole square plus cos 30 degree whole square minus sin 60 degree whole square. We know the value of tan 45. Tan 45 is equal to 1 square plus cos 30 is equal to root 3 by 2 whole square minus sin 60 root 3 by 2 whole square. Simple. So 1 square 1, 2 into 1 plus root 3 square and 2 square. You can cancel out here. This is plus value, this is negative value. Cancel out. Or you can write in this form root 3 square 3, 2 square 4 minus root 3 square 3, 2 square 4. So 2 plus 3 by 2 minus 3 by 4. 3 by 4 plus 3 by 4 minus cancel out. So answer is 2 1 2. Simple. Third one is second. Part second, answer 2. Now question.
क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थर्ड, cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। cos 45, we know the value of cos 45 is equal to 1 upon root 2 upon sec 30। sec 30 किसका अपोजिट होगा? cos 30 का। sec 30 किसका अपोजिट होगा? cos 30। you know cos 30 is equal to root 3 by 2, so sec 30 just inverse 2 by root 3, so sec 30 is equal to 2 by root 3 plus cosec 30 just reverse of sin 30, you know sin 30 is equal to 1 by 2, 1 by 2, so cosec 30 is equal to 1 by 2, 1 upon 1 by 2 is equal to 2. We know that cos theta is equal to 1 upon sin theta, so cos 30 degree is equal to 1 upon 1 by 2, so 2 value. Okay, simple. 1 by root 2, take LCM, here value 1, take LCM, LCM is root 3, root 3 और 1 का LCM root 3, root 3 बन जाए root 3 into 2, 2 plus 1, 2 into root 3 into 2, 2 root 3. Okay, simple. Now this value is this one, so you can multiply by inner value and outer value. 1 into root 3, 1 into root 3, root 2 into this one, 2 plus 2 root 3, so the value is 2. See here, so this value is 1 into root 3, root 3 upon root 2 into 2, कुछ लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 2 4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 2 into root 2 क्या होगा? 2 root 2, both are unlike terms. Okay, root 2 and root 3, see here, root a into root b is equal to root ab. Simply here root 2 into root 3, root 2 into root 3 is equal to root 6, but 2 is not multiplied by this one, both are unlike. 2 into 2 कुछ लोग 4 कर देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो root 2 into root 2 root 6, so you can write plus 2 root 6. Okay, now in denominator if root is present, so we rationalize the denominator. We can rationalize the denominator. How can rationalize the denominator? Here positive sign, so multiplied by root 3 upon 2 root 2 plus 2 root 6 multiplied by, because we rationalize this value, whole value, denominator, 2 root 2 minus here plus, so we in rationalize change the sign, 2 root 6 upon 2 root 2 minus 2 root 6. Simple, simple. So the value of this one, root 3 into 2, simple here, 2 root 3 into 2 root 2, so 2 root 6, root 3 into root 2 root 6 minus root 3 into root 2 root 6 into 3 18. Okay, root 3 into root 6, this value upon, now here a plus b, a minus b, so the identity is a square minus b square, हमेशा यही बनेगा डिनोमिनेटर में। so a square 2 root 2 square minus b square 2 root 6 whole square, so 2 root 6 माइनस रूट 9 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 9 इंटू 2, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2, और देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 9 इंटू 9, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो रूट 9 की वैल्यू
3√2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √9 टू 3 राइट 2 हेयर 2 स्क्वायर 4 √2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 √6 स्क्वायर इंटू 6। बहुत सिंपल, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान देना। 2√6 माइनस देखो √9 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 3√2, तो 3 इंटू 2 6√2 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 6 4 जा 24। सो आंसर इज 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया √6 माइनस 3√2 अपॉन 8 माइनस 24 माइनस 16, 2 कैंसिल आउट 8। सो आंसर इज √6 और माइनस अगर हम कॉमन ले लें बाद में देखते हैं 3√2 अपॉन माइनस 8 इन डिनोमिनेटर माइनस साइन, so you can solve with that here common -1 माइनस कॉमन लिया तो 3√2 माइनस √6 अपॉन माइनस 8 माइनस माइनस कैंसिल आउट, so answer is 1/8 3√2 माइनस √6। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताया, एक एक स्टेप, कई स्टेप इसमें गाइड किए जा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हाउ कैन यू सॉल्व दिस वन? ओके, सो sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 cos 60 प्लस cot 45। हाउ कैन यू सॉल्व? सी sin 30 is equal to 1/2 plus tan 45 1, tan 45 is equal to 1 minus cosec 60, just reverse the sin 60, sin 60 value √3/2, so cosec 60 2 upon √3, 2 upon √3। okay, sec 30 cos 30 का just reverse, cos 30 वैल्यू √3/2, तो sec 30 2 upon √3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, tan 45 का रिवर्स, tan 45 is equal to 1, so cot 45 is equal to 1/1 1। now here take LCM, here value 1 2 1 और √3 का LCM कितना आया 2√3, कितना LCM 2√3। और साफ लिख देते हैं, एलसीएम कितना 2√3, so 2 is here √3 plus 2√3 minus √3 कैंसिल 4। ठीक है, नाउ इन डिनोमिनेटर एलसीएम √3 2 और here 1, so एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, so √3 कैंसिल 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कैंसिल √3 plus 2√3, so the value is C here, that's right, √3 plus 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 ऐड हो जाएगा, कैसे 2 प्लस नहीं √3 plus 2√3, इसमें √3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 here 2, 1 plus 2 3, 3 into √3 3√3, so this value is 3√3 minus 4 into inner outer multiplied, so 2√3 कैसे मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन ये फिर √3 plus 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, so 4 plus 3√3 into डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई दिस वन ऐसा 2√3
2√3 मल्टीप्लाई है तो कैंसिल आउट। अब कितना बचा तुम्हारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ओके, इस तरीके से लिख लिया आगे पीछे। नाउ रूट इज अवेलेबल इन डिनोमिनेटर, तो वी रेशनलाइज दिस टर्म। सो रेशनलाइज विद प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ओके, 3√3 माइनस 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी ना। इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। देखो 3√3 इंटू दिस वन, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a माइनस 4 का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a हो गया माइनस बी, सेम वैल्यू लिखी है 2 टाइम्स, सो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन, या तुम सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, फिर इधर, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, सो 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर 3√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 3√3 इंटू b4 अपॉन 3 स्क्वायर 9 √3 स्क्वायर 3 माइनस 16। ओके, सो 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 √3 स्क्वायर 3, सो 9 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24√3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16, सो 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 11, so this value is 6 plus 7 43 minus 24√3 upon 11 आंसर। ठीक है, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट इट डाउन, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल। 5 cos स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 60 होल स्क्वायर, cos 60 होल स्क्वायर प्लस 4, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है sec 30 है तो sec स्क्वायर कैसे, सो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म sec 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो, सिंपल। सो sin 30 होल स्क्वायर प्लस cos 30 होल स्क्वायर। नाउ cos 60 इक्वल टू 1/2, सो 5 1/2 होल स्क्वायर। ओके, प्लस 4 sec 30 cos 30 के रिवर्स, cos 30 इक्वल टू √3/2 sec 30 2/√3 होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर कितना है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5
1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, so simple 5/4 plus 4, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर 3, so 2 स्क्वायर 4, 4 into 4 कितना 16 अपॉन here रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1, यहाँ पर 1/4 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3 और 2 स्क्वायर 4, सिंपल. नाउ टेक एलसीएम, here एलसीएम इज 3 4 जा 4 और 3 एलसीएम 12. देखो 3 4 जा 12, 4 16 जा 64 माइनस 12, here LCM 4 1 plus 3, so how can you solve? 64 minus 12 52, so 15 plus 52 upon inner multiply this one into 4 upon 1 plus 3 4 into 12, so 4 से 4 cancel, so 15 plus 67 upon 12. Answer is 67 upon 12. Note it down. Now, question second. Choose the correct option and justify your choice. Question second. Choose the correct option and justify your choice. पार्ट 1. देखो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल. फर्स्ट वन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक चूज कर लेना, करके देखते हैं. ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन ए sin 60, बी cos 60, सी tan 60 एंड लास्ट वन डी इज इक्वल टू sin 30. इसमें से कोई एक ऑप्शन है, कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल, हम इन सब की वैल्यू मालूम है और इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे. जैसे सॉल्यूशन, इनमें से कोई एक ऑप्शन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री होल स्क्वायर. tan स्क्वायर 30 को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखो 2 tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 अपॉन 1 प्लस here tan 30 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर. सिंपल. अब क्या होगा इसकी वैल्यू? 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3. ठीक, तो कितना आ जाएगा ये? 2 अपॉन √3, इसका एलसीएम कितना ले लेंगे? 1, सो 3 एलसीएम, सो 3 प्लस 1 हो गया. एलसीएम लेना तो आता ही है, बहुतों को नहीं आता, तो सीख लो यहाँ पे. सो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3. 10th में भी एलसीएम नहीं आता बहुतों को, तो एक एक स्टेप कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, सो 2 into 3 इनर इनर आउटर आउटर मल्टीप्लाई 2 into 3 अपॉन 4 into √3. ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया? 3 अपॉन 2√3. अब देखो फिर इसको तो 2 मिनट में कर दो, 1 सेकंड में हो जाएगा. सारे स्टेप लिख रहे हैं कि कैसे भी सीख जाओ. अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? रूट, और रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखते. ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 2√3 को मल्टीप्लाई करें केवल √3 का.
सिंपल, जब एक डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो, क्या ये सिंगल टर्म है 2√3, तो जो रूट में वैल्यू है सिर्फ उसी का क्या करेंगे रेशनलाइज। सो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ओके, सो ऑप्शन देख लो, 3 इंटू √3 3√3 अपॉन, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, √3/2। √3/2 किसका ऑप्शन होता है इसमें? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 पहले से ही मैच कर गया। cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2, किससे मैच कर रहा है? √3/2। सो ये क्या हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू sin 60, ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 45 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ए tan 90 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन sin 45 एंड बी ऑप्शन 0। देखो चेक करते हैं कैसा क्या होगा। वी नो दैट tan 90 इक्वल टू क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी जिसको बोलते हैं। इसकी तो वैल्यू लिखी है sin 45 1/√2, ये 0 लिखा है। अब हमें इनमें से चेक करना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो सॉल्यूशन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपल, इसको कैसे करेंगे? 1 माइनस, हमने बताया था tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ये ना भूलना। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 0/2 आंसर 0। कौन सा ऑप्शन है? डी, ऑप्शन डी। सिंपल। नाउ थर्ड पार्ट sin 2a, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, ये कह रहा है a is equal to, a का कौन सी वैल्यू इसमें से चूज करें। ऑप्शन क्या दे रखा है? a is equal to 0 डिग्री ले लें, b 30 डिग्री ले लें, c 45 डिग्री एंड d 60 डिग्री। इनमें से चार में से कौन सी डिग्री लें जिसकी ये वैल्यू पुट कर दें। दैट मींस a की वैल्यू 0 डिग्री भी चूज कर सकते हैं, 30, 45 एंड 60। इनमें से हम कौन सी वैल्यू लें जिससे हमारा क्या हो जाए? sin 2a लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखते हैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और दिस वन इज राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, इसको हमें चेक करना है। अब देखते हैं, लेट पहले से लेके चले, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। और लेट क्यों करना? a इज इक्वल टू 0 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड sin 2a इज इक्वल टू sin, ये एंगल है, a क्या है? एंगल 2 इंटू a की वैल्यू 0 डिग्री, तो कितना हो गया? 2 इंटू 0 0,
साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो गया 0। अब लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड क्या है 2 साइन ए, ए की वैल्यू हमने कितनी चूज की थी, पहला ऑप्शन लेके देख रहे हैं, सो ए इक्वल टू 0, सो 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, ये तो पहली बार में हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए की पहली वैल्यू हमारी फिट बैठ गई, 30 करके देखेंगे, 45 करके देखेंगे, 60 पर क्यों करें, पहले से ही चेक हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या है ए। इसमें क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 पार्ट 4, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी sin 30 डिग्री। इनमें से हमें चूज करना है कौन सा सही होगा। वी नो दैट cos 60 इक्वल टू 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। कोई इसका सॉल्यूशन अगर इनमें से कोई आ जाए वो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला क्या करते हैं सॉल्यूशन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, 2 tan 30 इक्वल टू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की 1/√3, और ये क्या है स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 2/√3 हो गया, ये इट इज द 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर 1√3 स्क्वायर 3, भूल मत जाना √a इंटू √a, सो इसका क्या कर रहे हैं 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम, यहाँ वैल्यू कितनी है 1/1, एलसीएम कितना आ गया 3 माइनस 1, सो वैल्यू कितनी हो गई 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा फाइनल 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल, अब कितना आ गया 3/√3 आ गई वैल्यू, 3/√3 रेशनलाइज कर दो, या ऐसे कर सकते हो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अगर रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर दो, नहीं तो ऐसे कर दो √3 से √3 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई √3। अब देखो इसमें से √3 किसकी है, पहला नहीं है दूसरा नहीं, थर्ड ऑप्शन सी tan 60, सो tan 60 ऑप्शन सी ये करेक्ट, ओके नोट करो। ना समझ में आया दोनों क्वेश्चन, दोनों बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan खत्म हो रहा है, tan a minus b is equal to 1/√3। अब देखो इसका रिमेनिंग पार्ट हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये पीछे वाला क्या पार्ट लिखा हुआ है, क्या है ये, देखो इसमें दिया है a प्लस b, एंगल a प्लस एंगल b लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। इसका क्या मीनिंग है अभी समझ में आएगा, ठीक है। एंड a इज ग्रेटर देन, एंगल a किससे बड़ा है, एंगल b से, फाइंड a एंड b।
ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कहीं कुछ नहीं करना और सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं इसी में स्टूडेंट्स। देखो सॉल्यूशन, अभी हमें इस पर कोई ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ बिल्कुल नहीं देना, क्या लिखा है क्या नहीं, अभी देखने जैसे ही सॉल्यूशन निकलेगा, आंसर निकलेगा, हम तुरंत इसको चेक कर देंगे। हियर क्या गिवन है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। सबसे पहली बात ऐसे कर लो। दूसरे में क्या गिवन है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब tan की टेबल देखते हैं, क्या देखते हैं, tan की टेबल। सो tan की अगर हम टेबल चेक करें, सो tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू है, √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की। सो √3 की जगह हम क्या लिखते हैं, tan 60। तो √3 रिप्लेस बाय tan 60 डिग्री। हियर देखते हैं tan a माइनस b, देखो ऐसे कर लो फिर ये करना, चाहे जैसे कर लो। अब tan की टेबल में 1/√3 किसकी होती है, tan 30 डिग्री की। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये tan, ये एंगल है, ये tan है, ये एंगल। जब बोथ रेशो tan दोनों कैसे हैं, tan के रेशो है, तो tan क्या होते हैं, नलीफाई, हट जाते हैं। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इसको ही सॉल्व कर लो फिर इसको कर लेना। अब यहाँ पे tan, तो ये एंगल है, ये भी एंगल है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब टारगेट क्या है, a और b फाइंड आउट करना। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। सिंपल क्या करें, एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड ऐड हो जाते हैं। a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है 60 डिग्री, यहाँ राइट हैंड साइड 30 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ओपन कर लो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। सो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a is equal to 90/2, so a is equal to 45 डिग्री। a की वैल्यू कितना निकल आया, 45 डिग्री। पुटिंग दिस वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो इसमें या तो इसमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किस में रख दें, इसी में रख देते हैं, फर्स्ट में, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट a is equal to 45, यहाँ पर कितना रखें, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45, यहाँ रख दें 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ b कितना आया, 15 डिग्री आ गया। a की वैल्यू 45, b 15। अब देखते हैं कंडीशन, गौर करके देखो, एंगल a इक्वल टू 45, एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री। देखो a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अब देखो a प्लस b, a प्लस बी 45, तो देखो a प्लस बी कितना निकल के आया था, a प्लस बी 60 डिग्री, 90 से कम है, a प्लस बी लेस देन 90 से कम है, इज ग्रेटर देन 0 से है। ये सिर्फ क्या है, कंडीशन वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना, बहुत सारे क्या सोचते हैं, ये क्या दे दिया, हाथ पे फूल गया, इसको ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ इनको सॉल्व करना, बाद में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, ठीक। a इक्वल टू 45 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। अब इसमें तीसरा एंगल जो भी होगा उसका सम कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल c की वैल्यू निकल आएगी। Now, question 4. State whether the following are true and false. It is based on true or false statement. Justify your answer. Justify your answer. This is the most important part. Number 1. First part क्या है? Sin a plus b is equal to साइन ए प्लस साइन बी। ये चेक करना है कि ये ट्रू और फॉल्स क्या है, कि ट्रू है या फॉल्स है, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो ये क्या दिया है, एंगल
ये क्या एंगल, दो एंगल का सम एक साथ एंड इंडिविजुअल साइन एंगल, सम ऑफ टू एंगल विद साइन, एंगल विद साइन, एंगल विद साइन इंडिविजुअली, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ऐसा लेना, चूज करना जिनका यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सको। जैसे कौन सी हम वैल्यू ले लें, ए प्लस ए 30 ले लें, बी अगर हम 45 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 45 75। तो यहाँ 75 की वैल्यू जानते ही नहीं है, मालूम है कहीं नहीं। अब उसमें कौन सी वैल्यू चूज करें कि जैसे ए हम ले लें 0 डिग्री और बी कितनी ले लें 30 डिग्री, तो 0 प्लस 30 डिग्री हो गया, यहाँ साइन 0 और यहाँ साइन 30, काम बन गया। तो पहले लेते हैं a इज इक्वल टू 0 डिग्री, बाद में देखते हैं कोई और ऑप्शन लेके, एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब किसी ने अगर ले लिया ना a इज इक्वल टू 30 ले लिया और b इज इक्वल टू 45, बोले ये भी तो चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इनका सम 30 प्लस 45, जैसे a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू किसी ने क्या ले लिया 45। अब देखो a प्लस बी करो, a प्लस बी कितना हो जाएगा 30 प्लस 45 डिग्री 75 डिग्री। अब बताओ हमने टेबल में कहीं पढ़ा 75 डिग्री, नहीं, तो यहाँ कहाँ से निकालोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है। दूसरा कोई एक ये तो चल जाएगा, a प्लस 0 प्लस 30 डिग्री, ये तो मालूम है। एक और देख लेते हैं कौन सा, 30 और 60 ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, सम करके देखो a प्लस बी 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, ये भी एंगल मालूम है, इनका भी मालूम, पर इतना करने की क्या जरूरत, हम एक चूज कर लें छोटा सा। सो लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री साइन 0 प्लस b इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या है साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। देखो ये कितना हो गया 0 प्लस 30 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस साइन 30 हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू देखो साइन 30 1/2 1/2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, चेक हो गया, ये इसके लिए तो वैलिड है। आगे देखते हैं ये वाला ऑप्शन देखो, a इज इक्वल टू 30 b इज इक्वल टू 60। अब देखो यहाँ कितना आएगा, अब दूसरा हमने कौन सा ले लिया ये वाला वैल्यू, इसमें तो 75 आएगा ही नहीं, तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब चेक करो ये कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना होगा साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 √3/2, एलसीएम लिया 2 1 प्लस √3, यहाँ कितना आ रहा है 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इस केस में देखो 0 हो रहा था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा था, यहाँ पे नहीं इक्वल है, तो हमें सब कंडीशन के लिए वैलिड होना चाहिए, पर ये क्या है पर्टिकुलर एक दो वैल्यू के लिए वैलिड है, तो इसलिए इसके लिए वैलिड नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन क्या हो गया फॉल्स। क्या हो गया फॉल्स। यू कैन राइट साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके देखो यहाँ दोनों से कोई कहे कि इससे चेक हो गया सर आ तो रहा है, लेकिन यहाँ करके देखा तो नहीं आया, तो इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, the value of sin theta increases as theta increases। चेक करना है ये ट्रू और फॉल्स है, तो क्या कह रहा है साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। इसका पहले मतलब समझते हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा साइन की वैल्यू क्या इंक्रीज करती है, चेक करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके इस केस में साइन 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अगर सिंपल लगे
तो स्पीड बढ़ाओ यूट्यूब पे, है ना, सेटिंग में जाके तेजी से पढ़ो, इतना टाइम नहीं देने की जरूरत है। अगर समझ में आ गया तेजी से पढ़ो, 1.5 कर लो या 2 कर लो, और बढ़ के स्पीड तेजी से पढ़ते चले जाओ। 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब गौर करो ये जीरो हुआ, ये वैल्यू जीरो थी, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, ये वैल्यू 1 पॉइंट या हाफ से तो ये कम है ना, सो 1.414 है। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कम है, तो ये वैल्यू क्या होगी, सर्टेनली इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और ऊपर तो सेम है न्यूमरेटर 1 1, तो ये ज्यादा होगी। 60 साइन 60√3/2, ये भी वैल्यू इससे ही ज्यादा आएगी रिजल्टेंट से। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन 90 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तुम सारे केस में देखो, इससे ये बड़ा है, इससे ये वैल्यू बड़ी, इससे ये बड़ी, इससे ये बड़ी। So as sin theta increases, as theta increases, yes, if you increase the angle at a certain level up to 90, the sin theta is increased. So option ये क्या हो गया, true। क्या हो गया, true। Next, third part, the value of cos theta, the value of cos theta increases as theta increases। अब देखो cos थीटा में भी यही चेक करना जैसे साइन में किया। अब देखो लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है ना, तो यहाँ देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो रही है 1। थीटा इज इक्वल टू क्या ले लो 30 डिग्री, दो में ही सब पता चल जाएगा, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। cos 30 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना हुआ 1/√2। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। cos 60 1/2, देखो 1 है फिर कम हो रही, अभी यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 0.5 थी, कितनी 1 डिक्रीज हो रही है। तो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, नो, एज यू इंक्रीज द एंगल द वैल्यू ऑफ cos डिक्रीजेस। तो कितना आ गया ये क्या हो गया, false statement, value will decrease if you increase the angle in terms of cos angle, so false statement। Next, fourth, sin theta is equal to cos theta for all values of theta, for all वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसे ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा का मतलब क्या है, तुम्हारे सिलेबस में क्लास 10th स्टैंडर्ड में थीटा की वैल्यू सिर्फ 4-5 हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90, इनमें से ही चेक करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लेट 0 डिग्री, तो पहला क्या करें साइन 0 डिग्री, हमने क्या लिया 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, थीटा कितना ले लिया 0 डिग्री, साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 is equal to 1, क्या इक्वल है, नो। ये तो पहले के लिए थीटा की एक ही पहली वैल्यू के लिए क्या हो गया अनइक्वल, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा is equal to cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज इक्वल, नो, फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर एक अगला देखें, थीटा is equal to 45 डिग्री, सो sin 45 डिग्री is equal to cos 45 डिग्री, 1/√2 1/√2। इस केस में तो सही है ट्रू, पर अदर एंगल के लिए क्या हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। सो ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ओनली वन वैल्यू इज satisfy कंडीशन बट ऑल अदर वैल्यू विल नॉट satisfy द कंडीशन, सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, cot A is not defined, for angle A is equal to 0 डिग्री। देखो इसके लिए हमारा cot क्या है, किस एंगल के लिए,
एंगल 0 डिग्री के लिए क्या है, नॉट डिफाइंड। चेक करते हैं, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 क्या होता है, 1/tan0, लिख सकते हैं कॉट को 1/tan0, और 1/tan0 की वैल्यू 0, और जैसे किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं रिजल्ट क्या आता है, इनफिनिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। सो 0 डिग्री के लिए कॉट ए कैसा है, नॉट डिफाइंड। आंसर स्टेटमेंट ट्रू। ओके, सिंपल चेक एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। कहीं डाउट हो तुरंत कमेंट पे आप हमें मेंशन करिए, हम उसका फिर से अच्छे से समझाएंगे। और ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।